All right, guys, welcome to another episode of the Uncapped Indians. And this is just not going right for I16. I mean, they are coming under the radar for a lot of things that they really didn't foresee or expect themselves to get into. We'll get to that point. But yeah, I mean, we are here to discuss the game between South Africa and Bangladesh, and of course, to also preview Pakistan versus Canada. Daniel, first thoughts on the game, man. I mean, we were all expecting low scores and low scoring thrillers, but I think both the teams batted, you know, हम्म, poorly. पहले ना जब इससे पहले हम बात कर रहे थे, मैंने एक बार बोला था कि न्यूयॉर्क का जो पिच क्यूरेटर है एडलेड का, डो, उसने बोला था कि बहुत थ्रिलिंग होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, एंटरटेनमेंट होने वाला है। हम सब ने अज्यूम कर लिया था कि 200-250 रन की ये विकेट बनाए, बहुत मजा आएगा। हमें ये नहीं पता था कि ये ऐसे ब्लॉकबस्टर अलग तरीके से आएगा। एंड कभी कभी मुझे लगता है ऐसी चीजें ना सिर्फ अमेरिका सोच सकता है कि इन्होंने अगर ज्यादा रन बना के एंटरटेन किया है तो हम लो स्कोरिंग थ्रिलर्स देंगे। And that's what's happening in every match. I don't know what pitch this was played on, but साउथ अफ्रीका इस पे ऑलरेडी ये उसका दूसरा मैच है इस विकेट नहीं, तीसरा मैच है न्यूयॉर्क में उनका। पहले नेदरलैंड्स के सामने, फिर इसके सामने। तो हाँ, मतलब साउथ अफ्रीका has understood the wicket really really well. डेविड मिलर को सब पता है कि न्यूयॉर्क में कैसे बैटिंग करना है। एंड surprisingly, the wicket it was a similar match between India and Pakistan. And again, the men in green sort of could not get a full toss away. So it was the same thing, man. It's just different teams. One man whom has been a concern, matlab, if we had been in form, I don't know if that happens when South Africa moves on to the later stages of the tournament. But we got Quinton de Kock, for some reason, if he clicks, I think South Africa can have a really good chance of lifting this cup. And of course, Markram has been really good as a captain. We've spoken about him also. Mhm. But I really feel that Quinton de Kock really now needs to start delivering. And Riza Hendricks, man, first ball duck. So somehow they've just not really gotten, this opening pair to work. हम्म। और माकरन ने बोला कि हमारा जो टॉप ऑर्डर है उसकी वजह से दो बार अब मिलर और क्लासन के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया। एंड दे आर द वंस हु सॉर्ट ऑफ contributed 80 runs of the match out of 114। 80 runs is contributed by that pair। क्विंटन डिकॉक ने अच्छा शॉट मारा था, पता है, जिस बॉल पे आउट हुआ ना, उससे पहले तानजीम हसन साकिब को पुल मारा था, बहुत बढ़िया। बट अगेन वेरिएबल बाउंस था विकेट में, उसको लगा सेम सिमिलर हाइट पे बॉल आएगा, कुड नॉट रीड इट, गॉट थ्रू। एंड यार इस विकेट पे ना पहली 5-6 ओवर बहुत क्रूशियल है, स्पेशली जब आप पहले बैटिंग कर रहे हो। अगर उसमें आपने अपने आप को सेट कर दिया ना, देन बिकॉज रियली इजी फॉर यू टू कैरी फॉरवर्ड इट, बट नहीं हो पाया यार। इट वाज, But आई एम आपका वरीड अबाउट एडन मार्करम। you'll have to apply yourselves, on this wicket, no matter how big a hitter you are. और आपका क्या मतलब नाम है, रेपुटेशन ऑन पिचेस लाइक दिस, वो मैटर नहीं करता। क्लासन ने दिखाया कि भाई उसके पास दुनिया भर की हिटिंग कैपेसिटी है, पर उसने क्या किया, ऑलमोस्ट रन अ बॉल इनिंग्स खेली फॉर हिज साइड. So that just goes to show that you've got to be a little mature when it comes to pitches like these, and you've got to really understand and take the game through. And तू ये देख लेना यार, they were somewhat 84 for 4 or something like that, and from there on to only score, 100 and I mean, मतलब 100 और वो 118, वो मजा नहीं आया यार. मतलब एक तरीके से ये लगा है कि आप फिनिश नहीं कर पा रहे हो गेम्स को. Somehow teams are not able to finish games in the last 4 or 5 overs. जो is a little alarming, because usually अगर आप देखो तो batting sides really do well in power play and they finish games well, and it's during that middle phase when the actually when the run rate dries up. Here what is happening is that you are not starting well, then you try and build, and during the middle overs you're building towards the death overs, and then suddenly when you want to attack during the death overs, because boundaries are very difficult to come by, नहीं होता. नहीं कर पाते हो। करेक्ट। दैट्स व्हाट क्लासन और मिलर ने बोला ना कि जब हम मिडिल में थे तो हमने डिसाइड किया कि हम ये एक वनडे इंटरनेशनल की तरह खेलेंगे। हम्म, कि हम्म. भाई 15 ओवर तक सिर्फ ओडीआई की तरह खेलो, सिंगल सिंगल लो, उसके बाद देखते हैं। और जहां जहां वो मारने गए वहां वहां आउट हुए हैं। यू कांट हिट अक्रॉस द लाइन। वी सॉ इट yesterday also in the India Pakistan match, day after. Also, you try to hit across the line, there's no point. The bounce is just too unpredictable, if not I uneven think anyway. Bangladesh really played well. मतलब in the sense they really exploited the conditions well. Tanzim and Tashkent दोनों ने अच्छी bowling करी. बॉलिंग बहुत अच्छी थी।
बॉलिंग बहुत अच्छी थी एंड तस्किन अहमद के ऊपर इन्होंने बहुत भरोसा दिखाया है. आई थिंक ही वाज इंजर्ड आल्सो प्रीवियसली. एंड तंजीम हसन साकिब बहुत अच्छा बॉलर था, बट उसके करियर के स्टार्ट में ना प्रॉब्लम उसके साथ ये हुआ था कि उसको उसको बीसीबी ने बहुत फटकारा था बिकॉज ही रोट अ स्लाइटली ऑफ रिमार्क अबाउट समथिंग इन ऑन हिज फेसबुक पोस्ट व्हेन ही वाज वेरी यंग, 20 साल का था. अच्छा. आई थिंक आफ्टर दैट he's come back very strong. He इसको पूछा what's your favorite wicket, तो उसने बोला Deacock was my favorite wicket because he hit me for a six. So I mean, it was something. Rishad Hussain finally gets a wicket. They've backed their leg spinner up. आज भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में नजमुल हुसैन शांटो ने बोला कि हुसैन था तो उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, एक विकेट ली और उसने बहुत क्रूशियल विकेट ली थी इसकी, डेविड मिलर की. हम्म. वो वाज ऑन 29, अगर वो खेल जाता तो दिक्कत हो जाती. बट इम्प्रेस विद बांग्लादेश बैटिंग, वेरी इम्प्रेस, वेरी इम्प्रेस, सीरियसली वेरी इम्प्रेस, एक्सेप्ट फॉर साकिबुल हसन. आई थिंक लिटन दास वाज आल्सो गोइंग रियली वेल, जो सॉफ्ट डिसमिसल हो गया. बट साकिबुल हसन ने बहुत, आई वाज वेरी अपसेट व्हेन साकिबुल हसन गॉट आउट, सीरियसली. Shakib Al Hasan, मतलब he played a pull that I don't know, it was very un-Shakib like. आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, आप साइड को मतलब दिस वाज द टाइम व्हेन इट हैज टू कम टू द फोर, लाइक या 118 का चेज है, मतलब यू नो दैट हाँ थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है. एंड सॉरी 113 का चेज है एंड दिक्कत हो सकती है, तो आपको उस तरीके से प्लान करना चाहिए था. आप ऐसे नहीं कर सकते यार कि आप अपनी विकेट गिफ्ट करके चले गए एक तरीके से. एंड या नोकिया ने उसको क्या कहते हैं अच्छे से एक्सप्लॉइट भी किया है यार बाय बोलिंग. एंड इट वाजंट जस्ट द वन शॉट बॉल, मतलब उसने काफी इनिंग्स में क्या कहते हैं शॉर्ट बॉल डाली एंड ही गॉट द रिवॉर्ड्स फॉर इट आल्सो. सो आई थिंक पता है. फॉर द आईपीएल हाँ. नोकिया इज रियली एंजॉय bowling on these wickets क्योंकि उसको बहुत मारा है यार. हाँ, बहुत मारा. नौकिया गुस्सा हो गया, अब आओ, अब तू आ, अब ऋषभ पंत आए सामने, अब तेरे को दिखाता हूँ मैं. शाकिबुल हसन पे पता है वाज अपसेट. एक सिमिलर बॉल आई थी अक्षर पटेल को इंडिया पाकिस्तान मैच में, ठीक है. ही चोज टू रैम्प इट. दिस गाय इज चूजिंग टू पुल इट ऑन अ विकेट लाइक दिस. भाई बॉल कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा ना भाई. इतनी तेज नौकिया डाल रहा है, माफ कर दे उसको, उसको कहाँ तू पुल मारेगा यार. वो भी आउटसाइड द ऑफ स्टंप. अगर, बिकॉज आई एम सेइंग इफ शाकिबुल हसन वुड हैव सर्वाइव्ड एंड ही वुड हैव बीन देयर फेसिंग केशव महाराज's लास्ट ओवर, he would have won it. वो नहीं मिस करता, मैं बता रहा हूँ. But I think it was also a very very mature innings from Hridoy. Hridoy ने अरे क्या बहुत खेल रहा था वो. मतलब I feel for him, but I think he could have also really gotten his team over the line यार. मतलब इतने साल का experience है आपके पास, of हम्म. having that still that 2016 memory, perhaps haunts you. I don't know for some reason, but you really could have gotten Uh, the team over the line. But before we discuss something very debatable, uh, a word on Kagiso Rabada and Keshav Maharaj here for their bowling performance. साउथ केशव अफ्रीकन अटैक. केशव महाराज में तेरे से अलग पूछ लेता हूँ. कगिसो रबाडा. साउथ अफ्रीका के पास बहुत कमेंडेबल फास्ट बॉलिंग अटैक है. Kagiso Rabada is what Jasprit Bumrah is to India for South Africa. He हाँ. is their go-to bowler. अभी नौकिया विकेट ले रहा है, but Rabada is the one who creates that pressure. एंड जब वो ओवर्स चल रही थी और मैं कैलकुलेट कर रहा था कि अब किसको माकरम देगा, तो मैंने रियलाइज किया, या अल्लाह, आखिरी ओवर तो केशव महाराज डालने वाला है. तो उससे पहले की ओवर सारी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई. एंड आई थिंक Kagiso Rabada bowled the 19th over if I'm not mistaken. I think he did. Yeah. So at that point in time I was like, okay, बट रबाडा now. से मैं इसलिए भी ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ क्योंकि विथ रबाडा दिनेश कार्तिक ने भी बोला है एंड लॉट ऑफ अदर पीपल दैट व्हेन ही प्लेज फॉर साउथ अफ्रीका ना देयर इज दिस एक्स्ट्रा थिंग दैट ही गिव्स. ही इज ऑलवेज रेडी टू गिव समथिंग एक्स्ट्रा फॉर फॉर द नेशन एंड फॉर साउथ अफ्रीका. देयर इज एन एक्स्ट्रा इंच जंप एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, मतलब स्ट्राइड में उसके, और वो आता है अंदर से उसके आता है. एंड देन हिज aggression as a fast bowler sort of adds up to what South Africa has on offer. And now we come to the most important part जो सब लोग सुनना चाहते हैं, the controversial decision and then of course the law of ICC so far. Daniel, my first thoughts on this. So basically एक LBW होता है, अपील जाती है,
पर अंपायर उसको ऑन डिसीजन मतलब ऑन फील्ड डिसीजन उनका आउट हो जाता, पर वो बॉल उनके पैड पे लग के सीधा चौका चली जाती। नाउ द पॉइंट इज कि लोग कह रहे हैं कि नहीं यार इसको चार अवॉइड मतलब 4 रन देने चाहिए क्योंकि डिसीजन रिवर्स हो गया था और बॉल चौका चली गई थी, सो मतलब आउट है नहीं, और आपका मार्जिन ऑफ डिफीट 4 रन। ठीक, माई माई एंटायर परस्पेक्टिव नाउ, द मार्जिन ऑफ डिफीट इज 4 रन। Are we today talking about this thing only because of the fact that the margin of defeat is 4 runs, and had it been 10 runs, हम क्या इसके बारे में बात कर रहे होते कि नहीं कर रहे होते? मुझे ये चीज आनी है क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि जब तक सर तक पानी नहीं आ जाता तब तक कोई देखता नहीं है, एंड दीज आर लॉज जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। But from just a Bangladeshi fan perspective also, or even from a South African perspective also, there are two perspectives. One is a bowling side perspective, one is a batting side perspective. हम्म, बॉलिंग साइड कहेगा कि नहीं भाई मेरे लिए तो यही रूल था, तो कोई चक्कर नहीं है, हमारे लिए तो हमें तो ऑन फील्ड डिसीजन तो अंपायर का स्टैंड करना चाहिए। देन अंपायर्स का क्या सिग्निफिकेंस रह जाएगा इस गेम में? हम्म। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आईसीसी को इनफैक्ट सोचनी चाहिए, एंड आई एम श्योर उन लोगों ने लॉ बनाने से पहले ये चीज सोची हो। क्या लगता है तेरे को? यार अगेन जैसे तूने बोला कि अगर मैंने अपील की है, ठीक है, और डिसीजन मेरे फेवर में गया है एज अ फील्डिंग टीम, तो मैं वो बॉल को क्यों रोकूंगा यार? वो बॉल मैं रोक सकता था, नहीं रोक सकता था, सेकेंडरी। मैं एफर्ट भी क्यों करूं जब मुझे पता है आउट है? तो फिर वो आपको 4 लेग बाइज नहीं मिलनी चाहिए। हम्म, हाँ, अब आपका नसीब ऐसा है कि आपको आउट दिया और वो 4 लेग बाइज चली गई, तो दैट इज अ वेरी लक ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि उससे उसके बाद भी एक बार तो हुआ जब ये बॉलिंग कर रहा था केशव महाराज, वो 1 रन भागे, नहीं दिया, हम्म, जो आउट था नॉट आउट था जो भी है। बट या सो यू कैन जस्ट चेंज द रूल लाइक दैट बिकॉज वन क्लोज मैच केम इन टू अ पिक्चर ऑफ हाउ यू सेड, कि 4 रन से जीत गए तो ये चेंज कर दो सबके लिए। ऐसे सबके लिए चेंज नहीं कर, और ये किसी दिन हमारे साथ होगा ना तब हम बोलेंगे ये रूल खराब था, पता है, ये तो इसने अपील की मैंने। तो ये इमोशनली थॉट आउट होता है कि यार हमारे वाले टाइम पे रूल ये वाला रखना चाहिए था। तो इट्स ओके यार, अब जब गली में भी खेलते तो हम बोलते हैं ना, नहीं यार ये मेरे आउट था, ये रूल चेंज कर दो। बट या आई एग्री, आई मीन सम रूल्स कांट बी चेंज्ड जस्ट बिकॉज ऑफ वन मैच। एंड या आई थिंक अनलकी बहुत फॉर सारे लोग पता है बांग्लादेश। अभी ये कह रहे हैं कि आईसीसी को देखना चाहिए, आईसीसी को देखना चाहिए, पर जब भी कोई लॉ बनता है ना धोनी, आई एम श्योर दैट दे पुट इन देयर परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, क्योंकि स्पोर्ट इसके कई सारे वेरिएबल्स होते हैं यार, इट्स नॉट जस्ट इन क्रिकेट। फुटबॉल में भी कई सारी चीजें वेरिएबल होती हैं, आप बाकी स्पोर्ट्स में भी देख लो यार, बहुत सारी चीजें वेरिएबल होती हैं बिकॉज इट एट द एंड ऑफ द डे हैज मैनुअल इंटरवेंशन। अंपायरिंग इज मैनुअल इंटरवेंशन इन द गेम। ठीक है, बॉलिंग बैटिंग सब कुछ मतलब आदमी ही कर रहा है ना, वहां पे मशीनें तो है नहीं। सो ऑल दीज थिंग्स जो हम कह रहे हैं कि मतलब इतनी सारी परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, आई एम श्योर उन लोगों ने सोचा होगा, एंड हेंस दे हैव कम अप विद वन स्ट्रेट लॉ। अदरवाइज अंपायर्स का क्या सिग्निफिकेंस रह जाएगा? आप वहां पे मशीन खड़ी कर दो, रोबो खड़ी कर दो, वो अपने आप ऐसे ऐसे घूमती रहेगी, अगर सामने आ रहा है बॉल तो वो ऐसे ऐसे बच जाएगी। वही हो सकता है, और क्या हो सकता है? मतलब डीआरएस फिट कर दो सीधा। डीआरएस रेट कर डीआरएस में क्या फीड करो, पिचिंग इन लाइन, आउट बाय आउट, स्पीड में आउट दिया इसने। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अभी डीआरएस भी उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है नहीं है, अनफॉर्चुनेटली, इट नहीं है, इज नॉट। हाँ नहीं है। मतलब एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन विच चैनल या फिर विच या स्ट्रीम। दिस थिंग इज डूइंग द दिस थिंग। कभी कभी वो इमेजिन पाकिस्तान या वेस्ट इंडीज में एकदम नीचे दिखा देता है, तो कुछ भी होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी 1 2 बार हुआ है ऐसा कि होता है बॉल स्काई ऐसा स्पोर्ट्स, स्विंग करके ऐसे। चैनल 9 हाँ, केम इनटू पिक्चर्स, स्काई स्पोर्ट्स था, वो कौन सा था जब वो विराट उसने कोहली किया वाला था, हुआ था। विराट कोहली ने किया था, स्काई द स्पोर्ट्स, एंटायर नेशन कैच योर प्लेयर्स एंटायर नेशन अगेंस्ट 11 केएल राहुल ने, स्काई स्पोर्ट्स। द स्काई स्पोर्ट्स नहीं, स्पोर्ट्स 9 जो साउथ अफ्रीका वाला है, सुपर स्पोर्ट्स, हाँ सुपर स्पोर्ट्स, सुपर स्पोर्ट्स, वो सुपर सुपर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स, सुपर स्पोर्ट्स। सुपर स्पोर्ट्स बहुत वो करता है, बहुत सही रहता है। बहुत लोगों का मतलब उसने पूरा एक वो एक्सपोज किया था ना, वो सैंड पेपर सागा। हाँ, उसने भाई ऐसा जूम करके दिखा रहा हो, तो बहुत क्रेजी। तो विराट कोहली कहता है फोकस ऑन योर ओन प्लेयर्स फर्स्ट। हाँ, ऑलवेज ट्राइंग टू कैच अदर गाइस। बट आईसीसी के लिए मेरे को यार बहुत बुरा लग रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स आई थिंक अ ह्यूज रिस्क दैट दे हैव टेकन टू होस्ट द वर्ल्ड कप इन यूएस,
एंड इस वर्ल्ड कप में ना ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू ना एक मेजर हिट लिया है। मैं बताता हूँ कैसे कि ऑस्ट्रेलिया में ना 2022 में जब वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हो रहा था, सो देयर ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू वाज समवेयर अराउंड 1600 टू 1800 क्रॉस, एंड मोस्ट ऑफ इट वाज थ्रू लीनियर टीवी। इस बारी क्या किया ना, इन लोगों ने टीम्स बढ़ाए, मैचेस बढ़ाए, ये सोच के कि नहीं यार अभी हमें वो वाला टाइमिंग्स नहीं मिलेगा, बिकॉज फॉर एन इंडियन ऑडियंस 6 a.m. is too early, and even 10:30 games or maybe 12:30 games, it doesn't really make sense. So कई सारे एफएमसीजी और जो फिनटेक कंपनीज हैं और जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उन लोगों ने स्टिल अप्लाई किया, बट नॉट मेनी पीपल वर एक्चुअली सेविंग देयर पर्स, व्हेन इट केम टू एडवर्टाइजिंग ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, क्योंकि लोगों ने कहा कि नहीं यार हम आईपीएल में ही कर लेंगे। बट देयर वर सम कंपनीज ऑफ कोर्स विच केम इन, एंड T20 के रेट्स ना हमेशा 30 to 40% प्रीमियम पे जाते हैं एज कम्पेयर टू वनडेज एंड टेस्ट्स। सो इस बारी जब हॉटस्टार, डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने ये स्पॉन्सरशिप्स वगैरह लेट आउट की, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सरशिप होगी दैट बी समवेयर अराउंड 80 क्रॉस, जो हमारी पावर्ड बाय स्पॉन्सरशिप होगी दैट वो सोल्ड फॉर अबाउट 55 to 60 क्रॉस, एंड द एसोसिएट स्पॉन्सरशिप वो सोल्ड फॉर अबाउट 30 to 35 क्रॉस। सो एक कॉन्सेप्ट है सीपीएम, विच इज कॉस्ट पर माइल, विच इज आपको 1000 व्यूज के लिए इतने इतने पैसे देने पड़ेंगे। सो ₹250 was the rate for mobile devices and 450 for connected TV। एंड यही चीज इंडिया पाकिस्तान या फिर आप किसी नॉकआउट स्टेज में चले जाओ, द रेट वाज 500 and 1000 रिस्पेक्टिवली। डबल। तो जिस तरीके से इनका रेवेन्यू आ रहा है ना, वो भी एक एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं प्रॉब्लम है इस बारी, बिकॉज एंड ऑफ कोर्स तो देयर आर सो मेनी कंट्रोवर्सीज राइट नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आर हैपनिंग, पिच, ठीक है, the entire India Pakistan saga, with ticketing and भाई 1 लाख की पार्किंग है। स्टार स्पोर्ट्स पे तने तिवारी मेड अ मैच ब्लॉग सेइंग कि भाई एक $1200 की पार्किंग है भाई, अगर आप इंडिया पाकिस्तान मैच देखने आ रहे हो तो सोच। आपने अभी तक स्टेडियम में घुसे भी नहीं हो, मैच देखने आए हो और आपने 1.5 लाख का खर्चा कर दिया है। कोई इसलिए मैं लोग ट्रेन से जाता हूँ मैच देखने। कोई कोई लोग गाड़ी लेके आएगा, अपनी फैमिली, दो दो फैमिलीज के साथ आएगा, तो अरे कैसे चलेगा? लोग लंदन से उड़ के आए हैं, बोलता है वी आर वाचिंग अ मैच इन द मिडल ऑफ नोवेयर। मतलब आई थिंक यूएसए ने थोड़ा फॉर ग्रांटेड ले लिया कि इंडिया पाकिस्तान इनको कभी भी दिखा दो ये देखेंगे। ऐसे नहीं होता है फिर इतना भी। मतलब इनको 10 घंटे आपको पानी नहीं पीना पड़ेगा, इंडिया पाकिस्तान दिखाऊंगा, हाँ हम करेंगे। भूखे आई रह के डोंट मैच थिंक, देखना पड़ेगा। ये तो सही कह रहा है, पता है क्यों? क्योंकि ना मेरे को लगता नहीं कि इन लोगों ने ना मार्केटिंग पे स्पेंड किया है, यूएस वालों ने। पता है क्यों? क्योंकि आपको बाकी सोर्स ऑफ रेवेन्यूज इतने कम हो गए, लोगों ने कहा कौन जाके देखेगा यूएस में यार, हाँ। और कौन 40-45 मिनट ड्राइव करके दबा और इतना डॉलर दे के कहाँ से। आई थिंक द यूएस बेट was taken too early by ICC, very very early by ICC। I think they could have probably waited for another 2 or 3 years, seen कि हाँ किस तरीके से MLC चल रहा है, whether you have the audience or not। and of course it also helps ना कि अगर आप थोड़ा सा और वेट करोगे तो उसमें थोड़ा सा आपके इमिग्रेंट्स और बढ़ेंगे, आपका साउथ एशियन जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा और बढ़ सकता है। बट आई समवेयर फील दैट दे गॉट इट रॉन्ग दिस टाइम अराउंड। तेरा कोई दोस्त है मान ले जो क्रिकेट नहीं देखता है, ठीक है, बिल्कुल क्रिकेट नहीं देखता है, तू हम्म। उनके साथ बाहर जाता है और तू उनको परस्यू करता है कि आओ मेरे साथ क्रिकेट देखो, तो तू उसे अपने घर पे बुलाता है, ठीक है। फिर घर पे बुलाने के लिए भी तू पैसे लेता है उनसे कि भाई सब मेरे को 1000-1000 रुपया दो, ठीक है। फिर आप मैच दिखाते हो। एक तो कि जो पहली बार क्रिकेट देख रहा है ना उसके लिए पहले तो 2020 फॉर्मेट ही उसको थोड़ा सा बड़ा लगेगा, अरे इतना 3 घंटा देखना पड़ेगा। फुटबॉल भी 3 घंटा होता है बट उसमें कुछ ना कुछ होता रहता है, इसमें ड्रिंक्स ब्रेक आएगा, फिर बॉलर अपने रन अप पे जाएगा, फिर वो कमेंट्री सुनना पड़ेगा, तो सारे सेंसेस एक साथ आपके काम करने चाहिए टू अंडरस्टैंड क्रिकेट। वो 1000 रुपए दे के इतना थोड़ी करेगा यार, थोड़ा सा प्राइस कम रखना चाहिए था, ठीक है। थोड़ा एक एक नॉमिनल प्राइसिंग करके मैच दिखाना चाहिए यार, ऐसे तुम इतना पैसा लेके इंडिया पाकिस्तान है तो कुछ भी लुटा तो घर थोड़ी बेच देगा यार आदमी। अरे पर कॉस्ट रिकवर भी तो करना है, $30 मिलियन का स्टेडियम बनाया भाई, तभी तो पार्किंग में ले रहे हैं पैसा। चल तेरे को। पार्किंग की जमीन और हाँ। क्या कहते हैं उसके ऊपर जो गाड़ी खड़ा किया, वो गाड़ी का पैसा मिलेगा 1.5 लाख का। 3 घंटे की पार्किंग के लिए 1.5 लाख रुपए, ओ माय गॉड। आई मीन चल तेरे को मैं एक इनसेन। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूँ। मैंने कहीं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें मैंने सुना कि 50 ओवर का मैच अब 40 ओवर का कर दो, हम्म। ठीक है।
हम्म और 5 डे को 4 डे कर दो, हम्म ठीक है? हम्म And do you think test match is overrated? These questions are not mine. These are from a podcast. But I had a very interesting answer come up. So what do you think? Is test match overrated? Ah, in the current scenario, what I would say is कि यार test match I don't think is overrated. I think is the need of the hour right now. मैं honestly बता रहा हूँ, ठीक है? And I'll tell you why. Because there has to be some sort of sanctity that has to be left in the game, and the only way that it can be done is by actually moving towards the purest form. Now, whether it is a feasible option or not, now that is a very difficult question to ask, because आपके लिए वो commerce नहीं है, Hmm. unfortunately. You don't really have the commerce to support test match cricket. And when you say test match cricket, you only come to three big nations: India, Australia, England. England. That is it. You don't really have financial background or support when it comes to the other nations. West Indies so far is struggling. Sri Lanka is struggling. Bangladesh struggling. Though they are playing World Test Championship, but how many series are you playing? You look at what World Test Championship has done. Okay, it has reduced the number of Test games. It has Hmm. reduced the number of series. Hmm. तो आप 6 सीरीज खेलते हो, चाहे वो 2 मैचेस की हो या 4 मैचेस की हो, कुछ 5 मैचेस की हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, डिपेंडिंग ऑन की कौन कौन खेल रहा है. अगर इंडिया इंग्लैंड खेल रही है, मेक्स ऑल द मोर सेंस कि हाँ 5 टेस्ट मैच सीरीज करो, लोग देखेंगे आके, बिकॉज इट्स इंडिया एंड इंग्लैंड. पर अगर इंडिया बांग्लादेश खेल रही है, तो 2 टेस्ट मैच बहुत है. So and say this. So there are purists, ठीक है, who will feel कि नहीं यार टेस्ट मैच क्रिकेट ये वो फलाना. एंड देन there are people, ठीक है, who would say कि नहीं यार T20 क्रिकेट दैट इज द नीड ऑफ द ईयर, क्योंकि मार्केट उसके लिए ही ज्यादा बड़ा है. But there are also data points which show that somehow people are also moving towards a little more laid and a little more relaxed, form of the game, which is from T20 to people are in fact starting watching a little bit of test match cricket is what data shows these days. But you can always debate that. इसमें ना किम्बर ने बहुत अच्छी बात की। वो तो आप सबको याद है, हेडिंगली में बेन स्टोक्स ने क्या किया था, बोला हाँ हाँ पूरा पैक क्राउड था। तो आपको ये याद है कुशल मेंडिस ने साउथ अफ्रीका के सामने कुछ सिमिलर किया था, तब कितने लोग देख रहे थे? तो वो बोलता है कि यार अगर मैच ड्रॉ भी होता है, बहुत पुराने टेस्ट मैचेस ड्रॉ हो जाते थे, बट फॉर अ मॉन्टी पानेसर एंड एंडरसन टू बैट आउट द लास्ट सेशन इज Hmm. मोर इंटरेस्टिंग देन प्रोबब्ली अ विक्ट्री ऑल्सो। भाई कभी भी बॉल पे विकेट जा सकता। तो उसने यही बोला कि आप हर क्रिकेट मैच देखो ना, हर एक इंटरेस्टिंग होता है, बट एज यू सेड कि हमें यही देखना है कि इंडिया कैसे खेलता है, इंग्लैंड के एशेज देखेंगे सिर्फ। अब वहां बांग्लादेश और श्रीलंका के टेस्ट मैचेस कितने इंटरेस्टिंग हो जाते हैं यार कभी कभी, आखिरी ओवर में 2 विकेट चाहिए होते हैं वट। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज एक बार इतना इंटरेस्टिंग हो गया था जब 1 विकेट चाहिए होती है। तो टेस्ट मैच कैन बी मेड इंटरेस्टिंग, इट्स जस्ट दैट यू इन्वेस्ट, एंड ही सेड दिस दैट यू इन्वेस्ट अ लॉट व्हेन यू आर वाचिंग अ टेस्ट मैच। आपने अपने 5 दिन उस मैच में इन्वेस्ट कर दिए हैं, वो बिल्डअप अगर आपने नहीं किया ना, तो आपको लास्ट डे का मजा नहीं आएगा। जब तक आप वो 4 दिन बिल्डअप करोगे तब मजा आएगा। तो टेस्ट मैच चलेगा यार, टेस्ट मैच 1-1 नहीं होना चाहिए। आई डोंट थिंक इट्स ओवररेटेड एट ऑल, आई थिंक इट्स फाइन। बंद नहीं होगा, पर बहुत कम कम टीम्स खेलेंगी. नहीं Like यार as अब, you also mentioned, maybe only the top 6 teams in the world. You will have नहीं अब maybe फ्लैट विकेट्स होना थोड़ी बंद हो जाएगी, थोड़ी। जो जो पाकिस्तान, जो इंडिया। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में था ना विकेट्स इस बारी इन इंडिया. I think they were the perfect test match wickets in India for test match cricket. मजाक नहीं कर रहा. फॉर इंडिया इंडिया। didn't India didn't go for rank turners जो पहले आ रहे थे, मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा 2 ढाई दिन में मैच खत्म हो जा रहा है, खत्म, वैसा नहीं किया उन लोगों ने. They played on proper pitches. England could complain a bit that they were playing on these kind of wickets. In fact, they thought, ठीक है, कि वो ऐसे विकेट्स पे आएंगे खेलने जहां पे पूरा गंदा तरीके से टर्न होगा, it'll be all of that. But on the contrary, द्रविड़ एंड रोहित शर्मा ने क्या कहा, नहीं अपने वो रैंक टर्नर नहीं है, क्योंकि ये लोग रैंक टर्नर प्रिपेयर करके आ रहे हैं, तो अपन इनको बढ़िया भेज देंगे. बट that really affected their first game performance. मतलब of course Holybrook drop भी हुआ उस पे, but it still gave England a chance. And I think if both teams have a chance at the end of let's say day 4, and you moving to day 5, that is what It test match rate it is. brings back memories of Virat Kohli on the last day with Ajinkya Rahane at the other end. India needing 288 to win in the ICC.
But talking about India, we have another game today. भाई आज जीत मुझे ना जाना मुझे ना आज। मुझे ना एक चीज याद आ रही है। ठीक है, वासीम अकरम, ठीक है, सकलेन मुश्ताक, चेपॉक, इंडिया नीड 20 to win with 6 wickets in hand. Yeah. ठीक है, Pakistan from the jaws of defeat managed to pull off a brilliant victory. ठीक है, and get a standing ovation from Chepok. 1999 की बात कर रहा हूँ। ये वही मैच है जिसमें सचिन को बैक पेन हुआ था और उसके साथ खेल रहा था वो। मैं उसके साथ खेल रहा था, 100 बनाया था, मैन ऑफ द मैच भी नहीं लेने आया, वो भी वो सब। इसके अलावा वसीम अकरम एंड वकार यूनिस ऑन अ स्टोर ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, जब उनको 40 कुछ रन चाहिए थे विद 8 wickets इन हैंड, हम्म। और ऐसा 2 बार हुआ उस स्टोर, हम्म। फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट दे पुल्ड बैक दोज गेम्स। दिस टीम, when they need very few runs to win, somehow just hands it over to the other side. ये ये टीम ये अलग है, ये जॉज ऑफ विक्ट्री से दूर भाग जाते हैं। दे फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। अरे यार, यार आई थिंक okay, give this team a little bit of time. Okay, I'm not saying the same set of players, but a few players will stay. Let Gary Carson settle in a little. ठीक है, वो थोड़ा उसको टाइम दो, उसको समझने दो कि क्या हो रहा है, उसके बाद फिर देखो खेलें अब। यार आई थिंक इट्स नॉट कर्टन्स फॉर पाकिस्तान, बट इफ ये वो नेट रन रेट का सिचुएशन हुआ, पाकिस्तान नीड्स टू विन हैवी, यूएसए नीड्स टू लूज हैवी, इट कैन बी अ क्लोज कॉल्ड गेम अगेंस्ट इंडिया, and then probably Pakistan can qualify. And if they qualify, then I think if यूएसए, अच्छा, मैं ये भी बताता हूँ, अगर यूएसए के साथ इंडिया का क्लोज गेम हुआ ना, तो लोग पता है क्या बोलेंगे एकदम से, ये लोग पता है क्लोज गेम इतना क्यों कर रहे हैं, ये लोग आराम से ताकि जीत सकते थे, पाकिस्तान ताकि पाकिस्तान बाहर हो जाए, नेट रन रेट को उनको और वो हो जाए, बूस्ट अप हो जाए ये हम यूएसए का। बचपन में सोचते थे ऐसा, ये जानबूझ के ऐसा नहीं, कर रहे अभी भी होते हैं। लोग सोचते हैं, अभी भी लोग सोचते हैं। प्रॉब्लम किसी यही है। किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि आपने पिच के बारे में क्यों कंप्लेन कर रहे हो, आपने पुराने वेस्ट इंडीज के बॉलर्स के सामने खेलते हुए देखा है। मैंने कहा पुराने वेस्ट इंडीज के बॉलर 170 पे डालते थे क्या? Okay, my only answer to this, and because there are so many comments, I don't know if this you will ever watch this video, but if you're playing in West Indies, you are playing in 150, 155, I agree. It's just that the batsmen did not have the equipments to sort of face such deliveries like a helmet, like a proper pad. Plus, the way game has improved with data and skills, they did not have that. And those are not dangerous pitches. Those pitches had bounce. The West Indian fast bowlers were fast. ये pitch dangerous था. I heard of people telling me that ओ पुराना मैच देख, अब नया नया क्रिकेटर बना है। अरे भाई पुराना मैच देखा है, देख के बोल रहा है। फायर इन द बेबीलोन भी देखा है। बोले क्या, फायर इन द बेबीलोन क्या, फायर इन द बेबीलोन वो है, देन वो विल बी द, डॉक्यूमेंट्री है। कुछ भी है यार कभी कभी। but please guys, it's there on YouTube. It's in 2 parts. Fire and Babylon. You should actually go and watch that. And I mean, that'll give you an A idea few people get hit. that at times it is not the pitch that matters. It is the fast bowlers who mattered quite a lot. And it was the use of those good wickets. And we are not talking whether, you know, I mean, we are obviously talking whether the pitch was good or not, in the sense that it was dangerous or fit for cricket, but not whether it was a bowling pitch or a batting pitch. That is none of our concerns. But it should be fit enough for cricket so that the batsman doesn't get hurt, because obviously you don't really want any unfortunate incidents. And another unfortunate incident that we don't want is Pakistan losing to Canada. Gary Then, Gary Thurston has seen our podcast and our reel, and he has made a statement that he has given a warning to Pakistan senior players that either evolve or get left behind. Coach Kirsten's back. either evolve or get left behind, and let's see if they evolve uh, in tonight's game. या We are और दो on मैच भी है ना। next. एक हाँ, तेरा फेवरेट मैच है भाई आज, हाँ, तेरी फेवरेट टीम का मैच है आज। मेरी फेवरेट टीम
हाँ, नेपाल। तू नेपाल का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है भाई। नेपाल वर्सेस श्रीलंका कल है, सॉरी कल है, कल है, मतलब कल है वो, कल सुबह है। है। Anyway, so we'll see you tomorrow, guys. We'll see you tomorrow after the two games, Nepal versus Sri Lanka, and then of course Canada versus Pakistan. Nepal versus Sri Lanka. I really hope that the community in Nepal, which is gathered to support Nepal in huge numbers, they keep coming in huge numbers because I think their team is at least putting in a lot of effort. That is for sure. They are coming together as a unit. They are playing together as a unit, and hopefully, we ये should. ये पता है धर्म संकट वाली बात है, श्रीलंका और नेपाल। तुमको नेपाल का कहानी भी मालूम है कि वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तुमको श्रीलंका का कहानी भी मालूम है, वो लोग तो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अभी। दोनों ऐसा ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे। कौन से फैन को तुम बोलो कि यार काश ये जीत जाए। बट एनीवेज आई विल गिव अ न्यूट्रल आंसर, आई होप क्रिकेट विंस, लाइक I हाउ इन think इंडिया this पाकिस्तान group has गेम वी really वर। become interesting now with South Africa's victory. Now there is one spot and three teams. In fact, all four teams, will stand a chance now. Even Sri बांग्लादेश Lanka, for that matter, Bangladesh should qualify. They've got one win under their belt. Uh, और फिर उसके बाद यार obviously Netherlands और नेपाल का जो मैच हुआ उसमें Netherlands had won. But now Nepal is playing their second game. हम्म। तो नेपाल के लिए एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है बट नाउ दे आर प्लेइंग अगेंस्ट श्रीलंका तो पता नहीं बट नाउ इफ श्रीलंका विंस दिस दे नीड टू विन बिग and then of course their game with Netherlands as well that will also be very very important for them to win big so that Bangladesh gets knocked out. So yeah, that's the group of death. That's the scenario from this group, and yeah, hopefully we should have a good game and excited to see a lot of Nepalese people coming in and supporting in huge numbers. When last time they came around, I think we felt like it was an India game. We felt like it was an India game, and it's good to see South Asian nation and then people from South Asia coming in supporting their country in a sport that is growing. So we are on X, we are on Facebook, we are on YouTube and Instagram. You all know us through our reels on Instagram, obviously. But yeah, I mean, this is our long form content. We really work hard to bring you all these insights. Keep reading, and of course, we keep learning while we give you all these insights as well. So we are as good as you, and yeah, hopefully you are able to give love to someone as 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 pretty similar as you are. So thank you so much, guys, and stay safe.